Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Yesterday we discussed about characteristics of living things and non-living things, that living things have a definite lifespan, and then we discussed about classifications of the living things on the basis of height, size and shape. For example, herbs are small in size, shrubs vary from 1 centimeter, and trees are very large, very tall in this size, and they live for many years. Then we classify on the basis of lifespan. Lifespan means some plants live for 1 season, some plants live for 2 seasons. Plants that live for 1 season are known as annuals, and that plants which live for 2 seasons are called biennial plants. And some plants which live for many years are called perennial plants, for example mango, guava and neem tree. Today we will classify on the basis of flowers. There are a number of plants on the earth. Some plants bear flowers while others do not have flowers. Plants which bear flowers are called flowering plants. Mango, neem, rose, sunflower, grasses are some of the example of flowering plants. That means कुछ plants ऐसे होते हैं जो पहले फ्लावर्स देते हैं, फ्लावर से फिर फ्रूट बनता है, जैसे मैंगो, नीम, रोज़, सनफ्लावर, ग्रास, इनमें आप क्या देखते हो फ्लावर्स होते हैं, और फ्लावर से फिर कुछ प्लांट्स के फ्लावर से फ्रूट बनते हैं, जैसे पोमीग्रेनेट है, पोमीग्रेनेट के पहले फ्लावर्स आते हैं, उसके बाद उससे फ्रूट बनता है. तो जो प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स, जिनके फ्लावर्स होते हैं, दैट आर नोन एज अ flowering plants. The plants which don't bear flowers are called non-flowering plants. Algae, mosses, mushrooms and fern are some of the examples of non-flowering plants. जिन plants के flowers नहीं होते, those plants are known as non-flowering plants. For example, algae and mushroom. As you can see in picture, this is mango tree, morning glory, grass. These are the flowering plants, and flowering plants are algae, mosses and mushroom. These are non-flowering plants. Now you have to do activity 5. Visit a park or garden and complete the table. Name of the plant. आपको अपने आप से ये एक्टिविटी करनी है. आपको एक पार्क में जाना है या फिर अपने आसपास के गार्डन में. देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ प्लांट. आपको बताना है कि आपने वहाँ पे कौन सा प्लांट ऑब्जर्व किया. वो प्लांट हर्ब है, श्रब है, ट्री है. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. देन यू विल क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन मीन्स वेदर दे ग्रो फॉर 1 season, 2 season or for many years. Then you have to classify whether these are flowering plants or non-flowering plants. First, mango. Mango is a tree. It is a perennial and flowers. Mango bear flowers. Second is pea plant. Pea is a shrub. This is annual. That means it remains for 1 season. This also bear flowers. Next, third example you take of radish. Radish is also a shrub, and radish is biennial. That means it lives for 2 seasons and it doesn't bear flowers. Next you take apple. Apple, correct the spelling of apple. This is a tree and perennial. That means it lives for many years and it bears flower. Next you take example of grass. Grass is a herb. Herb because size of grass is very small. Perennial means it lives for many years and it bears flowers. So do this activity. You can write the name of plant. Then you have to tell whether it is a herb, shrub or tree. It lives for 1 year, 2 or many years, whether it bears flowers or not. Now come to next page, page number 112. This is the classifications of the plants on the basis of habitat.
हैबिटेट मीन्स प्लेस वेयर प्लांट्स लिव, प्लांट्स कहाँ पर ग्रो कर रहे हैं. द प्लेस वेयर प्लांट्स और एनिमल्स लिव, गेट फूड एंड इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, फूड लेते हैं जहाँ पर, ठीक है. हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर प्लांट्स और एनिमल्स लिव. Plants and animals live and adapt themselves to their habitat. The habitat may be terrestrial or aquatic. Terrestrial means some plants live on land or other lives on water. Lives in water. You have already done in your 4th or 5th standard that there are the terrestrial and aquatic plants. Terrestrial means those plants which live on land. Land means desert, mountains or grasslands. Next is the aquatic. Aquatic habitat can be ponds, river, lakes or oceans. That means those plants which live in ponds, river, lakes are called aquatic plants. So it is clear to you that classification of the plants on the basis of habitat is terrestrial and aquatic. ठीक है. Then on the basis of natural habitat, plants have been classified into 3 categories: mesophytes, xerophytes and hydrophytes. These plants grow on land and need moderate amount of water. ये प्लांट्स कहाँ पे ग्रो करेंगे? लैंड पर. लैंड मीन्स अर्थ पे. एंड नीड मॉडरेट मीन्स नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है इनको. दे हैव मीडियम साइज रूट्स एंड बियर नॉर्मल ग्रीन लीव्स. फॉर एग्जाम्पल मैंगो, एप्पल ट्री. क्लियर हुआ? मेसोफाइट्स क्या होते हैं? जो लैंड पर नॉर्मल वाटर चाहिए होता है इनको, ना ज़्यादा और ना ही कम. मीडियम साइज़ के होंगे इनके रूट्स जो हैं, और ग्रीन लीव्स होते हैं. फॉर एग्जांपल क्या बताया आपने? मैंगो ट्री, एप्पल ट्री. नेक्स्ट इज ज़ीरोफाइट्स. दीज प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट. ये प्लांट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं? डेजर्ट में. ज़ीरो देखो आप नेम से बता सकते हो कि इन प्लांट्स को स्मॉल अमाउंट, मतलब बहुत कम वाटर चाहिए होता है. और जो प्लांट्स जिनको वाटर कम चाहिए दे विल सर्वाइव इन डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट में पहले ही वाटर बहुत कम है. तो ये प्लांट वहाँ पर ग्रो करते हैं जहाँ वाटर कम है. फॉर एग्जांपल इन अ डेजर्ट. दे हैव लॉन्ग रूट्स विच गो डीप इनटू द ग्राउंड. दे बियर थिन एंड स्पाइनी लीव्स विच हेल्प टू मिनिमाइज देयर वाटर लॉस. सम एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरोफाइट्स आर कैक्टी एंड बबुल. स्पाइनी लीव्स, इनकी जो लीव्स होती है, लीव्स कैसे होते हैं? स्पाइंस लगे होते हैं, मतलब उनके छोटे छोटे से आपको जैसे नीडल लाइक बोल सकते हो आप, नीडल की तरह होता है इनका स्पाइनी लीव्स. एंड ये स्पाइनी लीव्स की एक करेक्टरिस्टिक्स है क्या? दैट इट विल मिनिमाइज द वाटर लॉस. स्पाइनी लीव्स की वजह से इनका वाटर लॉस कम होता है, मतलब कम वाटर को ये लॉस करते हैं. तो जिसकी वजह से वाटर लॉस कम होगा तो वाटर इनको कम चाहिए. स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं. क्लियर हुआ? स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर क्यों चाहिए? क्योंकि इनकी जो स्टेम है वो मॉडिफाइड है. मॉडिफाइड कैसे हैं? दैट दे हैव स्पाइनी लीव्स. Next is the hydrophytes. These plants need maximum amount of water. They clear a hydra. Hydra means water. That means those plants which need maximum amount of water, जिनको बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स. They grow in water. They have either very small roots or no roots at all. इनकी रूट्स या तो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं या फिर रूट्स होती नहीं. हाइड्रा मीन्स जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं. कुछ प्लांट्स तो वाटर पे फ्लोट करते हैं. एंड सम प्लांट्स गोज़ डीप अंडर द वाटर. वाटर के बहुत ज़्यादा डीप रहते हैं ये प्लांट्स. दे बियर लीव्स कोटेड विद अ थिन फिल्म. इनकी जो लीव्स होती है, लीव्स पर एक थिन कोटिंग होती है. जैसे आप प्लास्टिक की कोटिंग की बात करते हो ना, प्लास्टिक, ऐसे ही इनके ऊपर एक कोटिंग होती है. दिस फिल्म हेल्प टू प्रोटेक्ट दैम इन वाटर. वाटर के अंदर प्रोटेक्ट करती है इनको ये. एंड एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफाइट्स आर लोटस, वाटर लिली. ठीक है? Lotus and water lily, these are the plants that grow in water, and their leaves contain a thin film. एक कोटिंग होती है इनके ऊपर. एंड दिस फिल्म प्रोटेक्ट दैम इन वाटर. वाटर में इनको प्रोटेक्ट करेगी. तो अभी हमने क्या किया? क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, मतलब कहाँ पर रहते हैं. जो प्लांट
नॉर्मल वाटर में रहेंगे, दैट दीज आर मेसोफाइट्स. जीरो मीन्स दैट लिव इन very those who needs very small amount of water, and hydra means which need maximum amount of water. Come to next page. Classification on the basis of nutrition. Nutrition means on the basis of their mode of nutrition, plants have been divided into categories autotrophs and heterotrophs. You already done in first chapter that autotrophs are those who can prepare their own food, जो अपना फूड खुद से बनाते हैं, those are known as autotrophs. Auto means self, troph means food, and heterotroph means जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, which depends on others, are called heterotroph. So this is the classifications on the basis of nutrition. First is the autotroph. Autotroph में आपने क्या बताया? These plants prepare their own food by the process of photosynthesis. Photosynthesis process के थ्रू ये plants क्या करते हैं? अपना food बनाते हैं. All green plants come in this category. As you know that all green plants, by the process of photosynthesis, they prepare their own food. Now question arises, what is photosynthesis process? The process photosynthesis reaction में होता क्या है? सबसे पहले तो हम बता रहे हैं कि जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होंगी. ग्रीन कलर के प्लांट से अपना फूड बनाते हैं. ग्रीन प्लांट्स क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ग्रीन प्लांट के लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स क्या करते हैं? नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे प्लस जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल्स जो हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. दैट मीन्स जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इस प्रोसेस में प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और कन्वर्ट किस में हुआ? नेचर में कौन सी गैस रिलीज़ कर रहे हैं? ऑक्सीजन में. तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के गैसेस के करता है ये. नेक्स्ट इज़ द हेटरोट्रोफ. हेटरोट्रोफ, दीज प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकते. दिस डिपेंड्स ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. दे यूज़ द फूड बाय द अदर प्लांट्स और एनिमल्स. दीज आर कोल्ड हेटरोट्रोफ्स. फिर हेटरोट्रोफ्स की भी फर्दर हमने कैटेगरी बताई थी, सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स. ठीक है. दीज आर अगेन डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज. अब हेटरोट्रोफ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया. लर्न दिस क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन लिसन केयरफुली. हेटरोट्रोफ को आपने क्या करना है? यू हैव टू टेल द टाइप ऑफ हेटरोट्रोफ्स. हेटरोट्रोफ को फर्दर आपने टू कैटेगरीज में डिवाइड करा. फर्स्ट इज द सैप्रोफाइट्स एंड सेकंड इज द पैरासाइट्स. सैप्रोफाइट्स आर द प्लांट्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग बॉडीज. Mushrooms and fungus are example of saprophyte plants. Saprophyte means, what are saprophytes? Saprophytes are the plants which feed on dead and decaying bodies. जो dead bodies पे depend करते हैं उनको saprophyte बोला जाता है. For example mushroom है, fungus है, ये क्या है? saprophyte है. जो मतलब जो dead bodies को के अंदर से जो minerals हैं उनको लेते हैं. क्लियर हुआ? मशरूम एंड फंगस जो है वो कैसे बड़ा होता है? डेड एंड डिकेइंग बॉडीज़ को खाते हैं. ये जो प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो जाते हैं उनको यूज़ करते हैं. दीज आर सैप्रोफाइट्स. नेक्स्ट इज़ द पैरासाइट. पैरासाइट आर द प्लांट्स दैट फीड ऑन अदर लिविंग बॉडीज़. अमरबेल एंड द ऑर्किड्स आर एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट प्लांट्स. पैरासाइट प्लांट्स क्या होते हैं? जो अदर बॉडीज़ पे डिपेंड करते हैं, जिसका डोडर को क्या बोलते हैं? अमरबेल. पैरासाइट्स क्या हैं? दैट फीड ऑन अदर लिविंग बॉडीज़, जो दूसरी लिविंग बॉडीज़ पे डिपेंड करती हैं. दीज आर द पैरासिटिक प्लांट्स. ठीक है. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड वी विल डू दिस क्लासिफिकेशन टुमारो. सो today you have to learn classifications on the basis of flowers. You have to give some example of plants that bear flowers and some plants which do not bear flowers.
Next is the classification on the basis of habitat. Habitat means the place where they live. For example, terrestrial, that means those who can live on land, and aquatic. Learn these definitions with the example. For example, mesophytes, xero and hydrophytes. As you can see that some plants need large amount of water, some need very small amount of water, some need normal amount of water. Then classified on the basis of amount of water with example. You have to learn these points, meso, zero and hydro. पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीरोफाइट्स या हाइड्रोफाइट्स. तो शॉर्ट नोट में आप बताओगे पहले तो कि प्लांट्स कहाँ पर ग्रो करते हैं, उनको वाटर कितना चाहिए, और फिर उसके एग्जाम्पल. क्लियर हुआ? पूरा आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू लर्न 3 पॉइंट्स. दीज प्लांट्स नीड मॉडरेट और स्मॉल और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, आपको ये बताना है. एंड सेकेंडली यू हैव टू टेल दैट देयर एग्जाम्पल एंड वेयर दे ग्रो. जैसे मेसोफाइट्स हैं वो कहाँ पर लैंड पे ग्रो करते हैं, एग्जाम्पल दोगे. एंड जीरोफाइट्स जो है डेजर्ट में, एंड हाइड्रोफाइट्स जो हैं वो वाटर में ग्रो करते हैं. Then we discussed about classification on the basis of nutrition. Nutrition means autotrophs which can prepare their own food, and heterotrophs which depend on others for their food. Learn with example. Then we categorize heterotrophs. That there are 2 type of heterotrophs, saprophytes and parasites. Saprophyte depends on the dead and decaying bodies, and parasite जो है वो living bodies के ऊपर depend करता है, जो host होते हैं, feed on living bodies. मतलब जो एक मेन लिविंग बॉडी है उसको यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल क्या दिया हमने, अमरबेल. दीज आर द पैरासिटिक प्लांट. सो लर्न दीज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. ओके, एंड हैव अ नाइस डे.